Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, now let us start with our second chapter of geography. Basically, our second geography book, that is India, and the chapter is migration. Now, class, as we have already studied in our first book regarding what exactly is migration, then basically what is immigration, what is emigration. These are the terms that we have already studied in detail in our previous book, the first book, I suppose the third chapter. So basically अगर हम नोटिस करें कि माइग्रेशन जो होता है सिंपल टर्म्स में मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन वेरी सिंपल टर्म्स, बट हमने उससे रिलेटेड बहुत सारी और चीजें भी देखी थी, जैसे पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होता है, किस क्या ट्रेंड होता है माइग्रेशन का. एंड इन दिस चैप्टर स्पेसिफिकली, एज बिकॉज इन दिस बुक ऑब्वियसली हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन इन रिलेशन टू इंडिया, the types of migration, the causes of migration and the consequences of migration. स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया से रिलेटेड बात करें तो. So to start with, they are just telling us one kind of story about a family, and then with that they are making us understand about the migration. Now there is a person named Ram Babu who is working as an engineer in Bhilai steel plant, Chhattisgarh, and he was actually born in small village of district Bhojpur, Bihar. And at the early age of 12, he moved to nearby town to complete his intermediate level studies. Then he went to Jharkhand for his engineering degree, and then he got the job in Bhilai, where he is living for last 31 years. Now his parents were illiterate, and the only source for their livelihood was income from agriculture. They spent their whole life in that village. Okay, now we see one of the child of a farmer actually goes to some other area to live, obviously for better employment opportunity and a better condition, life living standard. तो अब ये जो राम बाबू हैं, he has 3 children who got their education up to intermediate level at Bhilai and then moved to different places for higher education. One of them went to Allahabad and Mumbai and is presently working in Delhi as scientist. Second child got her higher education from different university in India and is now working in USA. And the third one, after finishing her education, settled at Surat after marriage. So this is story not only of Ram Babu and his children, but such movements are obviously increasingly becoming a universal trend. एक तरीके का ट्रेंड है जो बहुत कॉमन है. वी कैन फाइंड इट एवरीवेयर इन इंडिया. वी कैन फाइंड इवन पीपल मूविंग आउट ऑफ इंडिया, people coming from out of India to into India. So this is a trend which is nothing very different, yeah, uncommon. People are moving from one village to other. Then people are obviously moving from villages to towns, small towns to bigger towns, towns to cities, one city to the other city, and even one country to the other country. So as in our previous book, we have already studied about the concept and the definition of migration in detail. So migration is basically, we know, an integral part and very important factor in redistribution population over time and space. If you all remember, basically we're talking about population. तो हम जब भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो नेचुरल जो फैक्टर्स है, बर्थ रेट और डेथ रेट, उनके अलावा हम बोलते हैं कि माइग्रेशन जो है इट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So because migration also plays very important role, how many of the people are going out of that place and how many of the people are coming in that place, that will obviously affect the distribution of population. So that is why over space and over time it is an integral part and important factor regarding the
distribution and the redistribution of population. इंडिया जो है उसमें बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जनरली द नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री देखें इंडिया की, तो वी हैव waves of migrants coming and settling one after other in different parts of the country. Now, if we talk in terms of history, हमें पता है कि एक्चुअली में कौन सा सेक्शन जैसे इंडिया में था, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया में से इंडिया में आया, देन ईस्ट वेस्टर्न साइड में से इंडिया में आया, फिर उन्होंने इंडिया को अपना बना लिया, दे सेटल है. देन इवन हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे एंड दे वेंट बैक, बट उनमें से भी बहुत सेक्शन है जो रह के यहीं सेटल हो गया. So as many obviously poets have written lot of things about it, तो एक का इन्होंने अपने को नाम भी दिया है, फिराके गोरखपुरी जो हैं, उन्होंने लिखा है सरजमीने हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया. सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले कि people have been coming into India from all parts of the world and settling in India, and finally we have our present India in the present form where we have so many people, so many variety of people in terms of their मतलब माइग्रेशन के कारण. अब तो ऑब्वियसली जब इंडिया में सेटल हो गए हैं, दे आर इंडियंस, एंड नाउ सिंस जनरेशंस दे आर लिविंग हियर, सो दे आर ऑब्वियसली इंडियंस. But according to history, they have come from different places. So, but it is not that only people have come to India. Similarly, large number of people from India has also gone to different places for better opportunity, especially countries of Middle East, Western Europe, America, Australia, East and Southeast Asia. Now, there is a box that is given in your book on page number 16. Okay. And it says Indian diaspora. Now, what is this? Basically, moving of people from one place to the other. Simple terms. अब अगर हम देखें, तो we can actually talk about this phenomena in 3 parts. जो अपना सबसे first part है class, that is during colonial period. So we will notice that during the colonial period क्या हुआ, इंडिया से बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स इंडिया से बाहर भेजा जाता था टू वर्क इन द प्लांटेशन, चाहे मॉरिशस हो, कैरेबियन आइलैंड्स हो या फिर फिजी हो, एंड अदर एरियाज आल्सो. जनरली उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोगों को लेके जाया जाता था. ठीक है. So again, do understand what we mean here by this. We mean that people were being taken from lot of parts of India to the other parts of the world. Not only to the other parts of the world, but एक part के इंडिया के एक part से भी दूसरी जगह लेके चले जाते थे, basically to work as plantation workers. So वो हुआ तो migration ही. Now initially क्या हुआ था, actually this is something that I suppose we have studied in 10th class history, that indentured labor क्या होते थे, contract labor होते थे, generally 5 years का contract होता था, and they had to work there for on the plantation. वहाँ पे conditions अच्छी नहीं थी, that is what we have studied in our previous classes, कि है ना छोटी छोटी बात पे wages cut करते थे, गलती पे punishment दिया जाता था, many other things were being experienced by these indentured labor, but slowly and gradually वो वहाँ पे settle हो गए. They made their own families there, they made their friends, they started living there, और जब conditions improve हुई, proper independence जैसे हुआ उनका, और वो लोग वहीं settle होके वहीं रहने लगे. So obviously तब migration, कुछ लोग वापस भी आ गए थे, few settled there also. So इसमें simple बात अपने को ये समझने की जरूरत है कि उस time पे generally क्या होता था, these Indians were being taken to the other areas, basically to work in the plantation areas. ठीक है. And then उसके बाद
समवेयर इन्होंने बताया हुआ ब्रिटिश इधर इधर लेके जाते थे. The other people also took you can say Indians to the other areas. To be more specific, अगर बुक में देखें तो during colonial period, that is British period, million of indentured laborers were sent to Mauritius, Caribbean islands, Fiji and South Africa by the British from Uttar Pradesh and Bihar to Reunion Island, Guadeloupe, Martinique, Suriname by French and Dutch, and by Portuguese from Goa, Daman and Diu to Angola, Mozambique. है ना, इन जगह पे ये लोग इंडियंस को लेके चले गए थे. सो अपना जो माइग्रेशन है अर्लियर पीरियड में वो ऐसा हुआ था. ठीक है. और बेसिकली ऐसे जो माइग्रेंट्स हैं इनको हम ये भी देखेंगे, इनको टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था जनरली 5 years का होता था बट वेरी हो सकता था. तो ये जो एक्ट एक इन्होंने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट साइन किया करवाते थे जिसको गिरमिट एक्ट भी बोलते थे, जिसके थ्रू भाई उस टाइम पीरियड के बीच में आप कहीं भी जा नहीं सकते हो और अनटिल मतलब पूरे उस टाइम स्लॉट के लिए. तो ये एज वी हैव ऑलरेडी नो कि इनकी कंडीशन जो है एकदम अच्छी नहीं थी. छोटी छोटी बात पे वेजेस कटते थे, पनिशमेंट दी जाती थी छोटी छोटी गलतियों पे. तो इवन पीपल से दैट देयर कंडीशन वाज नॉट बेटर देन स्लेव्स. ठीक है, ऑलमोस्ट वैसी ही कंडीशन. तो ये तो हमारी हो गई जो फर्स्ट स्लॉट या फर्स्ट जो हम बात करते हैं अबाउट द माइग्रेशन. अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज में है रिसेंट टाइम्स में, जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्रीज, ये जो है थोड़े बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज यानी थोड़े नियर बाय जो अपनी कंट्रीज है वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं. और यहाँ पे सिर्फ ये प्रोफेशनल्स और आर्टिजन से रिलेटेड नहीं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स जो हैं उनकी भी डिमांड है. बेसिकली ये हुआ क्या, जब ऑयल से रिलेटेड बहुत ज्यादा ऑयल बूम हुआ, ऑयल ट्रेड से रिलेटेड, और ऑयल का इम्पोर्टेंस बढ़ने के बाद यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बहुत नीड हुई इन वेस्ट एशिया इन 1970s. तो यहाँ पे भी इंडिया के बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं. There was also outflow of entrepreneurs, store owners, professionals and businessmen to Western countries. Western countries की तरफ तो हमें पता ही है कि people are moving for better opportunities, है ना. अब जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव उन माइग्रेंट की है जो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे प्रोफेशनल क्लास है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन. ये लोग ज्यादातर कौन से कंट्रीज में जाना प्रेफर करते हैं? यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा. क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, इनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रॉस्परिंग ग्रुप होते हैं और इनको बहुत अच्छे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंट्रीज में. अपने एजुकेशन और स्किल के कारण इनकी अर्निंग कैपेसिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए जो इंडियंस है, स्पेशली ये वाला सेक्शन हमेशा यहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वांटिंग टू मूव आउट. और ये हुआ क्या, बेसिकली आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 90s, एजुकेशन and knowledge based Indian emigration has made Indian diaspora one of the most powerful diasporas in the world. ठीक है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या है, 90s में जब से एजुकेशन बढ़ी है और नॉलेज बढ़ा है, तो इंडियन एमिग्रेशन जो है उससे इंडियन डायस्पोरा जो है मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा हो गया इन द वर्ल्ड. मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है, और स्पेशली ये जो हमारे प्रोफेशनल और स्किल्ड क्लास है. In all these countries, Indian diaspora has been playing an important role in development of respective countries. Just understand the impact through this one line. दूसरी कंट्रीज के डेवलपमेंट में हमारे इंडियंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. All over the world, if you look at any of the big companies, you will notice that Indians are people who are
reaching great achievements and are doing great work for their company in which they are working. Okay, so जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए वो बहुत प्रोग्रेसिव प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं. So we can understand that what the loss India is actually suffering. जो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो जो ज्यादा स्किल्ड है वो तो somehow इंडिया से बाहर चले जाते हैं, ऑब्वियसली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इंडिया में उनको नहीं मिल पाती इतनी अपॉर्चुनिटीज, इसलिए. ठीक है, सो अभी हमने क्लास इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स किए. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर 3 वेव्स में अपनी जो माइग्रेशन है वो हुई थी. तो अगर फर्स्ट एज वी हैव स्टडीड कॉलोनियल पीरियड वाले टाइम, ठीक है, और अगर हम सेकंड वाला देखें बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज की तरफ, और फिर अगर हम अपना थर्ड वेव देखें that is in the towards the developed countries like USA, Canada, UK, Australia, New Zealand, Germany, etc. ठीक है, सो ये तो हो गया अबाउट द, यू कैन से जिस टाइप से माइग्रेशन होती है. अबाउट स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें कैसे किस फेज में अगर या कैसे अलग अलग वेव्स में माइग्रेशन हुई, ये है जो हमें चीजें जो है, आई सपोज दिस इज क्लियर कि 3 वेव्स के थ्रू, फर्स्ट में ब्रिटिश पीरियड के टाइम, सेकंड में जनरली नेबरिंग कंट्रीज, एंड थर्ड में जो अपने प्रोफेशनल ग्रुप है, हाईली एजुकेटेड ग्रुप्स, वो डेवलप कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक विथ ग्रेटर. नाउ हमें पता है सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है, टोटल समवेयर इन्यूमरेशन करता है, काउंटिंग करता है of the number of people living along with all their educational and the other details. So it contains information about migration in the country. Actually, migration was recorded beginning from the first census of India conducted in 1881. ठीक है, तो माइग्रेशन तब से ही रिकॉर्ड हो रहा है. फर्स्ट सेंसस जो अपना हुआ था, कंप्लीट सेंसस 1881. ठीक है, तो अपने को इन्फॉर्मेशन तो मिली थी, बट फिर डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. तो फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 के सेंसस में. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन was introduced in 1961 census by bringing in 2 additional components. ठीक है, यानी जो अपनी ये माइग्रेशन की इंफॉर्मेशन सेंसस से स्टार्टिंग से ही मिल रही है 1881 से ही, बट वो सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ की डेटा को रिकॉर्ड करते थे. उसके बाद 1961 में एक मेजर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ जो था कि हम प्लेस ऑफ बर्थ तो करेंगे ही एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस भी करेंगे, और उसके अलावा फिर 1971 में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी हुई, ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. ठीक है, एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस वेयर सेंसस इज बीइंग डन. So information on the reasons for migrations were finally incorporated in 1981. तो हम बोल सकते हैं 1881 से 1981 तक फाइनली जो हमारा सेंसस है और सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माइग्रेशन जो है वो क्लियरली क्या है इसमें स्टेटेड है. ओके, तो क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं इनके बारे में पढ़ लें. ठीक है, वैसे ब्रीफली देखो 1881 तक सिर्फ अपने पास माइग्रेशन का डेटा था ऑन प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, 1961 में 2 एडिशनल कंपोनेंट्स किए कि प्लेस ऑफ बर्थ विलेज है या टाउन है और कितने ड्यूरेशन से वो वहां पे रह रहे हैं. ठीक है, अगर कहीं और भाई बॉर्न हुए हैं तो किस एरिया में रह रहे हैं. अब फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन 1971 में क्या ऐड हुई कि आज जहां रह रहे हो ठीक है, उससे पहले आप कहाँ रहते थे. जरूरी नहीं कि वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है आपने 3-4 बार चेंजेस की हो बिकॉज ऑफ वर्क और सम अदर रीजन जो आपने प्लेस चेंज किया, तो उससे पिछले वाला जो है उसके मतलब लास्ट रेजिडेंस और अब जो जहाँ पे रह रहे हो, तो अब जो है किस टाइम पीरियड में आप कितने टाइम से वहां पे रह रहे हो, स्पेशली जब आपकी काउंटिंग हुई है सेंसस में, तब आप कहाँ हो और उससे पहले कहाँ.
और फाइनली 1981 में हमें रीजंस भी समवेयर पूछते हैं वो कि क्यों आपका माइग्रेशन आपने किया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये मेन डेवलपमेंट होने के बाद हमें और क्या चीजें जो सेंसस में जो माइग्रेशन है उनसे क्या क्या पूछी जाती है। पहली चीज ये पूछी जाती है, इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन? If no, then further information is taken on rural and urban status of the place of birth, name of district, state, and if outside India, then name of the country of birth. यानी पहले तो वो पूछते हैं कि आप क्या इसी जगह पे जन्मे थे जहाँ पे आप रह रहे हो, इसी विलेज या टाउन में? अगर हाँ तब तो ठीक है, अगर ना तो आप बताओ कि जो जिस एरिया पे आप जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, उसका रूरल अर्बन स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, और अगर आप इंडिया से मतलब जिस दूसरी कंट्री के हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने को देनी होती है। उसके बाद हैज द पर्सन कम टू विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर? क्या वो जो पर्सन है वो इस विलेज या टाउन में ऑब्वियसली कहीं और से आए? इफ यस, अगर नो तो ठीक है, इफ यस देन फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट ऑफ द प्रीवियस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आप पहले कहाँ रहते थे, वहां का नेम, डिस्ट्रिक्ट और उस स्टेट का, और अगर इंडिया के बाहर से आए हो तो उस कंट्री का जहां से आप आए हो। मतलब दो चीजें हैं, एक तो प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा है कि अगर आप सपोज प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा भी और कहीं रहे हो और उसके बाद उस प्लेस में आए हो तो आपको उसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस अपने को रीजंस भी देने पड़ते हैं फॉर माइग्रेशन फ्रॉम लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और अपने को ये ड्यूरेशन बतानी पड़ती है कि जहां पे आपका सेंसस में आपकी काउंटिंग हो रही है उस एरिया में आप कितने टाइम से रह रहे हो। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट actually you need to give to the census. Okay, the census people who come to do the enumeration. ठीक है, अब तो इसको एक तरीके से हम और थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इन्यूमरेटेड ऑन टू बेसिस, यानी दो बेसिस पे हम उसकी काउंटिंग और मतलब पूरा इवैल्यूएशन जैसे करते हैं। फर्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, ओके, तो हम उसको ये बोल सकते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट। समझ गए? यानी कि अगर जो जिसकी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, इफ दैट पर्सन उसका बर्थ प्लेस अलग है फ्रॉम द प्लेस जहां पे काउंटिंग हो रही है, मतलब वो आके और कहीं रहने ही लग गया है, तो वो उसको लाइफ टाइम माइग्रेंट बोलेंगे और उसकी डिटेल लेंगे। ठीक है, सेकेंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस का क्या मतलब है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब है कि बेसिकली कि आप जो लास्ट रेजिडेंस था उससे डिफरेंट है आपका अभी वाला एरिया, तो आपको क्या बोलते हैं? बेसिकली माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ठीक है, you understand, suppose you are born at A place, then you go and live at C place, then you shift to C place, and here the census people come to do their counting. So because you were earlier living in B, तो आप इस वाले में आ जाओगे। ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि आप सी वाले एरिया में कितने साल से रह रहे हैं। ठीक है, और अगर इसी को हम बोल दे पहले वाले में कि आप ए एरिया में बर्थ लिया है आपने और बी में जाके सेटल हो गए, तो आपका ये हो जाएगा लाइफ टाइम माइग्रेशन। ठीक है, अब मुझे यू मे बी हैविंग अ डाउट, व्हाई आर वी सेइंग दिस? अगर कोई प्लेस ऑफ बर्थ पे ही रह रहा है तो क्लास ही और शी इज नॉट अ माइग्रेंट, तो हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सेंसस में तो हो रहा है काउंटिंग, माइग्रेशन में नहीं हो रहा है, बिकॉज द पर्सन इज लिविंग एट द सेम प्लेस वेयर ही और शी हैज टेकन बर्थ। ओके, सो इसीलिए हम इसको दो में करते हैं, एक प्लेस ऑफ बर्थ और एक माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ठीक है, एंड देन हम बोलेंगे
कि जब आज अब हमें ये समझ आ गया है कि किस टाइप से हम दो लेवल पे इंडिया में माइग्रेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा और देख लेते हैं कि कैन यू इमेजिन द प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कितने हैं माइग्रेंट्स? अगर हम 2001 के सेंसस, दिस इज 2001 सेंसस, इसमें आउट ऑफ 1029 मिलियन पीपल in the country, 307 million, that is 30% were reported as migrant by place of birth. ठीक है? Whereas the figure was 315 million, that is 31% in case of place of last residence. So अगर हम देखें कि अगर 2001 के सेंसस, you will have to see, remember this data, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1029 मिलियन पीपल जो टोटल है, उसमें से 30% जो है वो हमारे प्लेस ऑफ बर्थ वाले माइग्रेंट्स हैं, और 31% जो है दैट इज 315 मिलियन वो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ठीक है? So with this we have understood few things regarding migration. Our next topic will be streams of migration. किस तरीके से लोग मूव करते हैं? तो बेसिकली रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, या अर्बन टू रूरल, यानी 4 स्ट्रीम्स में माइग्रेशन होती है। ये इंटरनल माइग्रेशन की बात है। ठीक है? इंटरनल मतलब विद इन आवर कंट्री, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। तो ये जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे in our next class. Okay, because this is the next topic and we need to obviously do a kind of discussion also on this. We have a table regarding this, so we'll do this topic in our next class. So I suppose आज जितना भी हमने किया है that must be clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, you can come back with your problem and we'll discuss and solve. So this is it for today. Now we'll meet in the next class. Any doubts, class? Okay, then we'll meet tomorrow.